So I was explaining about the console. So most of you had learned about C++ or even Python, C, Java. So Java, C++, C is a compiling language. The compiler reads each and every statement, converts into the low level language, and when it's finished the reading of the whole statement, then it displays the output. And when we move towards the Python, it's an interpreted language. The interpreter read each and every line of the code, execute it, and then move further to the next line. So in the JavaScript is much more like the Python. It is in an interpreting language. The JavaScript reads each and every line, responds to it, execute it, and then move to the another line to execute the remaining portion of the code. So if you are going to start the console.log, console.log, it's a function which is used to display the data on our console. The output of, you can say, the output of the JavaScript can be displayed on the console. There are two ways to display the output. First one is console.log, in which if I define anything, it's 42. I can write anything and then it will display in my console. It's a number. This is a string. This is a number. And the another one is alert message. Sometimes you fill a form, and if you are unable to, if you forget to give some parameter or define some parameter, it's show up something pop-up message, just like alert. You can see it. So you can say there do different ways to show our output through the JavaScript. The first one is console, and the second one is alert method. So I will prefer to display my output through the console. Is it clear or anything? Hello. Yes, sir. Clear, sir. Keep the session interactive, so it's not like that I am only reciting the things and you are just listening a poem or having fun. So okay. And another thing that is prompt. Okay. जब भी तुम्हें किसी भी लैंग्वेज कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं. उसको इनपुट दे सकते हो, उससे आउटपुट ले सकते हो. तो सेम चीज़ तुम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो. ठीक. तो मैंने तुम्हें बताया कि आउटपुट कैसे देना है. आउटपुट दिखाने के लिए तुम्हारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं. पहला है कंसोल डॉट लॉग, दूसरा है अलर्ट. अब जब हमारे पास अलर्ट मैसेज है तो वो हमारे स्क्रीन पर बार बार पॉपअप होगा. तो मुझे क्या करना है, उस पर स्क्रीन पर जाना है, एंटर मारना है, फिर स्क्रीन चेंज करके वापस कंसोल में आना है. It's going to be quite tough or difficult task for me by doing this each and every time. So I will prefer console.log to see my output. And for taking the input, we use prompt method. I will define something, enter a number. Okay. Then I can simply enter a number. So let me store this number in a variable. I will define a var a and store the number into it. I entered the number and then I console log a. समझ में आई. मैंने एक प्रॉम्प्ट डिफाइन किया. प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं किसी भी जावा स्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ इनपुट ले सकता हूँ. वो स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है और कुछ बूलियन वैल्यूज़ हो सकती हैं. ठीक. वैर क्या है ये मैं अभी आगे बता रहा हूँ. मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डिफाइन किया जिसके थ्रू वहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आया कि मैं क्या इनपुट देना सकता हूँ. मैंने इनपुट दिया, वो इनपुट ए वेरिएबल में सेव हुआ और वहाँ पर फिर मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया. क्लियर.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, या पहले वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? वेरिएबल्स It's a type of a container in which we take the input. it's not a variable, actually a memory block in which we can store anything. कोई और ट्राई? कोई भी? वेरिएबल क्या होते हैं? It's a container for storing data. मच बेटर। ठीक है, मतलब कोई भी जगह जहाँ पर मैं अपने डेटा को स्टोर करता हूँ, एक कंटेनर, एक मेमोरी ब्लॉक रैम में मेरे पास पड़ा हुआ। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करा है। ठीक, एक मेमोरी में हमारा एक ब्लॉक क्रिएट हुआ जहाँ पर जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो वहाँ पर स्टोर होगा। ठीक, अब उसको मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ अनटिल अनलेस मैं उस मेमोरी ब्लॉक को रिप्लेस ना कर दूँ या वहाँ पर कोई और डेटा ना डाल दूँ। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिफाइन करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज वैर, सेकेंड वन इज लेट, I'm going to do the same thing with it also. Okay. And console.log. And the third one is const. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों करते क्या हैं? सो वॉर और लेट ये ऑलमोस्ट सेम होता है, मैं बताता हूँ। वॉर और लेट तुम किसी भी डेटा टाइप को या किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे डिफर ऑन द स्कोप ऑफ बीइंग यूज्ड, कि तुम वैर को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, लेट को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। और कॉन्स्ट जो होता है वो सी, कॉन्स्ट वैर और लेट की वैल्यू जो होती है वो पूरे प्रोग्राम में तुम उसको म्यूटेबल होती है, वो प्रोग्राम्स में उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्ट जो होता है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। Sir. ठीक है, प्रोबेबली नेटवर्क इशू होगा, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। आनंद, आवाज़ नहीं आ रही थी, एक बार अभी ट्राई कर, शायद स्क्रीन वापस आ गई तेरी। हाँ सॉरी सर, सॉरी यार, नेटवर्क। मैं कहाँ अपने था? पर्सनल नेटवर्क पे आ जा अगर वो नहीं चल रहा तो, सिस्कॉम नहीं चल हाँ रहा सर, तो। स्विच कर लिया। ठीक है। मैं क्या बता रहा था? निखिल, कोई डाउट था तुम्हें? सर सर हर लाइन के हाँ बीच नीचे अनडिफाइंड क्यों लिखा है? बताते हैं, इंतज़ार करो थोड़ा सा। और किसी को कुछ? यह मैं कहाँ पर था तो मेरी स्क्रीन चली गई या आवाज़ चली गई? सर आप लैन और वेर के बारे में डिफरेंस बता रहे थे। लेट और वैर के बारे में डिफरेंस बता रहा था। हाँ, Vector. जावा स्क्रिप्ट इज बीन स्क्रिप्ट लैंग्वेज। मुझे यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने से पहले ये नहीं बताना होता है कि उसकी डेटा टाइप क्या है।
जैसे अगर मैं C++, या कोई कंपाइलिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे हर एक डेटा टाइप के लिए को डिफाइन करने से पहले हर एक वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले बताना पड़ेगा कि उसमें मैं किस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे C++ फॉर एग्जांपल में अगर मुझे कोई एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे इंटीजर टाइप डिफाइन करना है, तो उसके लिए पहले मैं इंट a डिफाइन करूँगा, फिर उसमें कोई वैल्यू स्टोर करूँगा। सेम चीज़ अगर पाइथन में है तो मैं a = int में कन्वर्ट करूँगा, फिर इनपुट लूँगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा केस नहीं है। यहाँ कि एक ही वेरिएबल में मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को दे सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऊपर ए में एक ये स्ट्रिंग है, मतलब जब भी हम यहाँ पर मैं स्टोर कर लेता हूँ वेर a = 43। यहाँ पर मैंने a में 43 एक नंबर स्टोर किया। सेम चीज़ अगर मुझे a में ही मैं चाहूँ तो एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ। ठीक, और साथ में अगर मैं चाहूँ तो a में एक बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। तो मुझे किसी भी एक वेरिएबल में डिफाइन नहीं करना पता कि इसकी डेटा टाइप पहले से फिक्स नहीं करनी पड़ती, इसकी डेटा टाइप क्या होगी। ठीक, अब आते हैं var और let पर। var क्या होता है कि तुम विद इन अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह वर्क करता है। तुम इसको पहले इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में डिफाइन कर सकते हो, या फिर डिफाइन कर सकते हो बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। तुम var को कहीं भी डिफाइन करो, लेकिन तुम उसे पूरे कोड के थ्रू आउट द कोड इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लेट के साथ ऐसा केस नहीं है। लेट को यूज़ करने से पहले तुम्हें उसे डिफाइन करना पड़ेगा। उसका स्कोप ओवरऑल द प्रोग्राम के थ्रू नहीं होता है। तो मेनली हम लोग वैर ही यूज़ करते हैं, और कॉन्स्ट में तुम वैल्यूज़ को म्यूटेट नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू डिफाइन हो गई वही रहेगी। ठीक है, समझ में आया या फिर से? सर फिर से बताओ। देखो, वैर क्या होता है कि एक कोई तुमने प्रोग्राम लिखा, मैं वैर को पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कंसोल वैर बी किया, वैर डी कर देता हूँ, और इसको console.log डी किया, मुझे कोई वैल्यू नहीं डिफाइन करेगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, ना ही कोई एरर शो करेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं एक लेट किया, लेट में भी सेम चीज़ होगी, कोई एरर मुझे शो नहीं करेगा। ठीक, दोनों में अभी तक यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं एक वैर को डिफाइन करने से पहले भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसको console.log अगर मैंने किया, कोई एक वेरिएबल है f, और कंसोल करने के बाद मैंने उसे डिफाइन किया, तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट है वो पूरे प्रोग्राम में फाइंड आउट करेगा कि एक वेरिएबल डिफाइंड है क्या f नाम से, वो उसे पिक करेगा और डिस्प्ले कर देगा। लेकिन लेट के साथ ऐसा केस नहीं है। लेट को यूज़ करने से पहले हमेशा उसे डिफाइन करना पड़ता है। उसका स्कोप जो होता है वो पहले डिफिनेशन तक होता है, फिर आता है यूज़ पर। समझ में आया? यस सर। जिससे नहीं आया वो बोल सकता है, फिर से बता दूंगा। सर एक बार फिर से। ठीक है, हमें कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, लेकिन वैर के केस में क्या होता है कि मैं उस वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले भी यूज़ कर सकता हूँ। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो वो पूरे प्रोग्राम में फाइंड आउट करेगा क्या कोई एक वैर डिफाइंड है इस नाम से। अगर उसे वो मिल जाता है तो वो उसे डिस्प्ले कर देगा। ठीक, लेकिन लेट के केस में मुझे उसे यूज़ करने से पहले डिफाइन करना पड़ता है। पहले मैं डिफाइन करूँगा कि लेट एक है, एक एफ ई वेरिएबल है जो कि लेट से डिफाइंड है। ठीक, और उसके बाद उसे यूज़ करूँगा। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कंसोल लॉक करूँ तो शायद ही डिस्प्ले हो यहाँ पर।
यहाँ पर मुझे ये एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया है। यस सर। ठीक, अब अगर मैं where g करूँ, मैं g किया, मुझे अनडिफाइंड किया क्योंकि मैंने g में कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक, अब अगर मैं इसे फाइल में रन करता तो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइल इंटरप्रेटर है जो कि मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, अब मैंने एक वेर यहाँ पर डिफाइन करा जी। ठीक, उसके बाद मैंने कंसोल जी। ठीक, कंसोल लॉक करता हूँ, एक और वेरिएबल आई और लेट किया मैंने आई। ठीक, इसे रन कर लेते हैं। इसका आउटपुट कहाँ गया? इसमें कैसे दिखाऊं? ये एरर से कर रहा है यार। ये बड़ा कैसे होगा? अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अब ये बड़ा कैसे होगा? कंट्रोल प्लस से ट्राई कर या फिर अपनी स्क्रीन का साइज चेंज करने की कोशिश कर। और छोटा होता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे को समझ आ रहा है लाइक यहाँ पे राइट में क्या लिखा हुआ आ रहा है वो वाली चीज। यस हाँ सर, सर, समझ आपको आ रहा अपनी है। zoom कर यस लिया सर, है। आ रहा है सर।
देखो, जब मैंने वेर डिफाइन किया जी और एक एफ, तो जी में तो मैंने पहले उसको यूज़ करने से पहले डिफाइन कर दिया, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक, वो एग्जिस्ट करता है एक वेरिएबल, लेकिन उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। सेम केस एफ मैंने यूज़ करा, उसके बाद मैंने डिफाइन करा, लेकिन फिर भी मेरे जावा स्क्रिप्ट स्मार्ट लैंग्वेज है, सो उसने फाइंड आउट कर लिया कि एक वेरिएबल डिफाइंड है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लेट के केस में। लेट के केस में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा h, जिसकी मैंने 5 वैल्यू दी और उसको यूज़ करा, तो यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है। ठीक, लेकिन मैंने एक और लेट डिफाइन करा i, जो कि पहले मैंने यूज़ करा उसके बाद डिफाइन करा, तो वहाँ पर मुझे एक एरर डिस्प्ले हो रहा है। आप कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक्चुअली ये स्कोप की है, मतलब जो मेरी एक वेर का स्कोप है वो पूरे प्रोग्राम में रहता है। ठीक, लेकिन लेट का स्कोप पूरे प्रोग्राम में नहीं होता, वो पहले उसे हम डिफाइन होते हैं, फिर उसके बाद उसका स्कोप होता है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। मैं कहाँ था? अब आते हैं डेटा टाइप्स पर कि डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या हो सकती हैं। नॉर्मली एक प्रोग्राम में नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन, ये सारे डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, पहली एक प्रिमिटिव, दूसरी कंपोजिट। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन तीन चीज़ें आती हैं। कंपोजिट में एरे है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो अगर हम प्रिमिटिव से शुरू करते हैं, जो कि बेसिक डेटा टाइप्स हैं, तो जब भी हम कोई जावा स्क्रिप्ट में कोई इनपुट लेते हैं, वो सारे इनपुट्स स्ट्रिंग के फॉर्म में आते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज है कि वो मुझे अपने वेरिएबल्स डेटा टाइप्स को कंपेयर करना खुद कर लेती है, या मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वे प्रोवाइड करती है डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, जैसे अगर मैं एक वेर डिफाइन करूँ डी, और मैं यहाँ पर एक इनपुट ले लूँगा, प्रॉम्प्ट पे मैंने कुछ भी डाला, यहाँ पर एक इनपुट देता हूँ, मैंने इनपुट दिया 45। मेरे और तुम्हारे लिए तो एक नंबर है, लेकिन क्या जावा स्क्रिप्ट उसे नंबर के फॉर्म में ले रहा है? ये भी उसने दिया। अब मैं इसकी टाइप देखता हूँ, तो अगर मुझे टाइप देखना है तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ डी, क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग। मतलब मैं जो भी इनपुट दे रहा हूँ वो मुझे लग रहा है नंबर है, लेकिन नहीं, जावा स्क्रिप्ट सारे इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो कन्वर्ट करने के लिए नंबर, जिसमें कन्वर्ट करना है, और उसके बाद डी। अब मैं फिर से इसका टाइप देखना चाहता हूँ, टाइप ऑफ डी चेंज हो गया। यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब एक तीसरी डेटा टाइप होती है बूलियन, जिसमें नॉर्मली 1 0 या ट्रू फॉल्स वैल्यूज स्टोर होती हैं। डॉट लॉग टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ एक फंक्शन है जो कि हमें किसी भी एक वेरिएबल का टाइप बताता है। ठीक, कि वो किस डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप्स हो गया। अब आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कोई बता सकता है क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल रन? कुछ भी? इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा होगा, स्विच, यस सर। क्या होता है इसमें? फॉर वाइल। सो अगर ट्रू होगा तो फिर वो करेंगे, लेकिन अगर ट्रू नहीं होगा तो दूसरा वाला करेंगे। मतलब अगर एक दो डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड है, हमारी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, और अगर फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। ठीक है,
Yes, sir. Sir, the code is only run when the condition is true. कंडीशन ट्रू होगी तब एक डेफिनेट ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, फॉल्स होगी तब भी रन करेगा लेकिन दूसरा कोड रन करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने लिखा इफ, मैं कोई एक वेरिएबल बना लिया अमाउंट, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 10, ठीक। अब मैं इफ कंडीशन लिखता हूँ, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड console.log अमाउंट। कोई दिक्कत? अब साथ में मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, अमाउंट की वैल्यू को माइनस माइनस करता हूँ, ठीक। तो मेरा ये कोड तब तक रन करेगा जब तक अमाउंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। यहाँ पर ये कितनी बार रन किया? 10 बार। वो लिखेगा नहीं, मैं इसको और कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ। मेरा कंपाइलर या कहूँ जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है, वो एक ही चीज़ को 10 बार प्रिंट करने की जगह डायरेक्ट डिस्प्ले कर दे रहा है कि नहीं, कि एक ही चीज़ 10 बार प्रिंट हो रही है। मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी 10 बार क्या, एक ही बार प्रिंट होगी ये वैल्यू। हाँ सॉरी, इफ़ स्टेटमेंट है ये, तो उसने पहले आया चेक किया कि क्या अमाउंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। अगर 0 से ज़्यादा थी उसने यहाँ पर अमाउंट को प्रिंट किया 10, ठीक, और फिर अमाउंट की वैल्यू को घटा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर console.log करूँ अमाउंट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या आएगा आउटपुट? 0। कोई और? 9। ऑब्वियसली 9, क्योंकि मेरा ये कोड एक बार चला है, ठीक। अब अगर देखो अमाउंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब मैं console.log करता हूँ कुछ और, मैं console.log करूँगा अमाउंट। सर हाँ सर हम लोगों ने कहीं पे भी टर्मिनेटर यूज नहीं किया, मगर इफ स्टेटमेंट के अंदर टर्मिनेटर क्यों यूज करते हैं? ठीक है। अब मैं नहीं यूज़ करता हूँ, देखता हूँ कोई असर पड़ता है। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। जावास्क्रिप्ट में टर्मिनेटर यूज़ करना न करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। पाइथन में तुम टैब अपनी लाइन चेंज करने के लिए टैब का यूज़ करते हो, या कहूँ मैं इंडेंटेशन का यूज़ करते हो, और सी प्लस प्लस में ये सेमी कॉलम का। यस सर। तुम्हारा सवाल है कि मैं कहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ और कहीं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट एक मैकेनिज़्म पर ऑपरेट करती है कि जो कि सोर्स कोड को एबल करता है कि मैं वो खुद ब खुद अपने कोड को ब्रेक कर ले। नहीं समझ आई बात? जावास्क्रिप्ट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। वो तुमसे हर बार पूछेगा नहीं कि कहीं मुझे कोड को ब्रेक करना है, नहीं, वो खुद का दिमाग इस्तेमाल कर लेगा और उसका वो खुद से समझ जाएगा कि हाँ, मुझे सोर्स कोड को कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ नहीं करना। ओके सर। ठीक। इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब इतना डीप तो अभी हम पहली क्लास में नहीं जा सकते।
तुम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन यूज करता हो कोई एरर नहीं शो करेगा। हाँ, ये कमांड इफ हाँ इफ एल्स पर था मैं। इफ स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर इनपुट किया कि अमाउंट की वैल्यू 0 से कम होगी तो मुझे अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक, अब अगर मैं इसके साथ एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ और एल्स में मैंने लिखा, भी लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया। ठीक, उसने पहले चेक किया क्या अमाउंट की वैल्यू 0 से कम है, तो मेरी अमाउंट की वैल्यू थी 9, तो 0 से कम नहीं है, तो उसने ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन ना करके एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड को रन किया। किसी को इफ एल्स में कोई दिक्कत? नो सर। ओके, ये देखते हैं। कोई आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता है कोई भी? इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? ओएसएस। कोई और? सर शायद कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। सर कुछ भी नहीं होगा। एरर आ सकता है ओएसएस पर। क्या आया? ओएसएस। ठीक है, तो इफ़ वाली जो कंडीशन होती है मुझे बस यहाँ पर चेक करना है कि ये स्टेटमेंट इफ़ के अंदर जो लिखी गई स्टेटमेंट है ये फॉल्स ना हो। तो सबने बूलियन पढ़ा है कि 0 और 1 दो वैरी होती हैं बूलियन वैल्यू, 0 हमेशा फॉल्स होती है और 1 हमेशा ट्रू होती है। ठीक, तो एनी वैल्यू अदर देन 0 और इवन इफ यू टेक द स्ट्रिंग्स नल कैरेक्टर इज ऑलवेज ट्रू। वो नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव, इफ के अंदर वो हमेशा ट्रू है, या पूरे सोर्स कोड में हमेशा ट्रू है। सिर्फ और सिर्फ 0 और नल स्टेटमेंट फॉल्स होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर -1 भी लिख दूँ फिर भी ये कोड रन करेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, कोड रन नहीं करेगा। ठीक, एक और फॉल्स ही होती है इसमें, नल स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी नहीं, नल कैरेक्टर खाली। ठीक, अगर मैं इसके अलावा ए भी यहाँ पर लिख दूँ तो ये हमेशा सही है। बात समझ में आई? सिर्फ दो Yes, केस sir. में कोई इफ स्टेटमेंट रन नहीं करता कि जो हमारे इफ के अंदर कंडीशन लिखी गई है वो फॉल्स हो जाए। अगर मैं कोई कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो 0 और नल कैरेक्टर के केस में वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बाकी सभी केस में वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्वाइट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इफ एल्स के बाद आगे है हमारे पास फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस पहले मैं चाहूँगा कि लूप पढ़ लेते हैं। लूप क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो। So when the conditions has to be executed repeatedly, then the loops are used. सही है। अगर मुझे किसी एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन कराना है तो मैं लूप का इस्तेमाल करूँगा। लूप भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर वाइल लूप और भी, लेकिन मेनली अभी मैं यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेयर आई मैंने डिफाइन किया 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। कंसोल अब मेरा ये है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है console.log OSS जो कि i की वैल्यू 0 से शुरू होगा,
0 1 2 3 4 के लिए रन करेगा, और जहाँ वो देखेगा कि आई की, तब तक रन करेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहेगी। जब आई की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा होगी, वो तुरंत इसको ब्रेक कर देगा और इस लूप को बाहर आ जाएगा। हर एक बार प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू इटरेट हो रही है, मतलब +1 हो रही है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद कंडीशन लगाई, फिर इटरेशन लगाया। ठीक, ये एक सीक्वेंस ऑफ कोड है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कर रहा है कि मैं 5 बार OSS न प्रिंट करके, तो मैं बता देता हूँ कि OSS जो है वो 5 बार प्रिंट हुआ है। ठीक, साथ ही मैं अगर कोई एक और वैर डिफाइन कर लूँ, b = 5, सॉरी अच्छा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो b = 5 और मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ। इस केस में मैं b की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ 0 से, और जब तक b की वैल्यू 0 से ज़्यादा है मैं यहाँ पर b को ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और b की वैल्यू हर बार माइनस करूँगा। ठीक, b की वैल्यू 5 4 3 2 1 रन हुई 5 बार, और जब b की वैल्यू 0 हो गई, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करना बंद कर दिया। कोई दिक्कत? सर ये लास्ट में 1 क्या है? b की वैल्यू, ये लास्ट जो वैल्यू सर जो यहाँ पर बच गई। ठीक, अब आते हैं, हम स्विच करते हैं पहले फंक्शंस से पर। defined था, सर बी सॉरी, पहले से डिफाइंड था, जिसकी वैल्यू 5 थी। हाँ b को मैंने ऊपर कहीं ना कहीं डिफाइन किया था ना, हाँ सर। तो एक ही वेरिएबल को किसी भी लैंग्वेज में बार बार रीडिफाइन क्यों करें? म्यूटेट कर सकते हैं, रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, लेकिन रीडेफिनेशन यहाँ तो अलग। पे जल्दी चल जाता, सॉरी, मतलब म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग बी को 6 भी लिख सकते थे, मतलब कोई हाँ, भी नंबर। कोई तुम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार रीडिक्लेरेशन नहीं ना, समझ गया। समझे? अगर मैं इसको रन करता तो 6 से लेकर 1 तक, जब तक b > 0 है। ठीक, अब आते हैं फंक्शंस पर। फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो, फंक्शंस क्या होते हैं, किसी प्रोग्राम में क्यों डिफाइन किए जाते हैं, कुछ भी? नहीं पता? हेलो, Sir, code assigned to a specific task. कोई और? सब ब्लॉक ऑफ कोड। स्पेशल क्या है उसमें कि उसे फंक्शन कहेंगे? To execute a task. और फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं? Function is a set of instruction that perform a subtask for the application. ठीक है, और बनाए क्यों जाते हैं? To solve problems. हम कोई प्रॉब्लम रिक्वायर्ड हो तब एग्जीक्यूट हो। फॉर देयर यूजिबिलिटी। अगर मुझे एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को एक डिफिनेट प्रोग्राम में बार बार यूज़ करना है, तो मैं चाहूँगा कि उसको एक ही बार लिखूँ और बार बार इस्तेमाल कर लूँ। ठीक, तो उसके लिए मैं कोई एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अब देखो, फंक्शंस डिफाइन करने के लिए कीवर्ड है हमारे पास फंक्शन। कुछ नाम देता हूँ मैं इसको, नाम माई फंक्शन नाम दे लेता हूँ। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस फंक्शन में पैरामीटर्स पास करूँ, ना चाहूँ तो कोई पैरामीटर ना पास करूँ। ठीक, हमारे फंक्शंस वॉइड हो सकते हैं,
या हमारे फंक्शंस ये भी हो सकता है कुछ रिटर्न करें हमें। ठीक, तो अभी के लिए मैं वॉइड के साथ चलता हूँ। ठीक, मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ ये रिटर्न करें। इसके अंदर मैंने a को 5 दिया और b को 6 दे दिया, और मैं यहाँ पर कंसोल कर ले रहा हूँ डॉट लॉग। कंसोल लॉग में मैं सारी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये मुझे सही आउटपुट ही भी देगा। ठीक, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सही आउटपुट 5 + 6 11। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर लिया a, b। ठीक, और फिर मैं क्या करता हूँ, a और b यहाँ डिफाइन ना करके सिर्फ कंसोल डॉट लॉग a करता हूँ। मैंने यहाँ पर फंक्शन की डिफिनेशन दे दी। ठीक, अब मैं जब भी पास करूँगा, इसमें मैं 2 वेरिएबल्स पास कर सकता हूँ। 6,7 मैंने पास किया और आउटपुट मेरे पास आया 13। ठीक, अब देखते हैं फंक्शन से हम कुछ स्कोप समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया z। ठीक, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वैर डिफाइन किया h और इसकी वैल्यू दी 1। ठीक, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया y, अंदर एक वैर डिफाइन किया मैंने i जिसकी वैल्यू दी 2। मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा h, i। ठीक है, और z फंक्शन के अंदर मैं फिर से एक बार कंसोल लॉग करूँगा h, i। तो मुझे बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं फंक्शन z को कॉल करूँगा तो? कोई भी कुछ भी। मैंने एक फंक्शन बनाया z, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया h जिसको मैंने वैल्यू 1 दी। उसके बाद मैंने उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया y जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया i, और फिर मैंने एक बार h, i को y में डिस्प्ले कराया और एक बार z में भी डिस्प्ले करा दिया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं z को कॉल करूँगा तो क्या होगा? So 1, 2. सर कितनी बार? केवल 1। So 1, 2 and so 1, 1. कोई और? 1, 2 and next में सिर्फ 1। ठीक है, देखते हैं कौन सही है। ये क्या है? क्या मैंने कहीं आई और भी डिफाइन कर रखा है क्या? h की वैल्यू तो 1 है, सही है। मैं कुछ और डिफाइन कर लेता हूँ। सर आई में कोई भी रैंडम वैल्यू। मे बी। सॉरी, उनका मत रही, यहाँ पर भी आना चाहिए 1, 2। वो क्यों नहीं आ रहा है? ये वाली वैल्यू क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है? कंसोल डॉट लॉग h, i। एच भी, उसका स्कोप भी सही, y का स्कोप भी सही। सर क्योंकि शायद y वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, केवल डिफाइन हुआ है। y वाले फंक्शन को मैं बाहर कॉल नहीं कर सकता। हाँ, बात सही है तुम्हारी, y वाला फंक्शन केवल z के डिफाइन अंदर हुआ। कॉल करो उसको। हाँ सर, वही करने जा रहा z क्या करो सर? था। अब मैं z को कॉल करता हूँ। हाँ, 1, 3 और 1, 2।
अब यहाँ पर मैं स्कोप समझा सकता हूँ तुमको। जैसे देखो, मैंने एक h डिफाइन किया z के अंदर 1 और एक i डिफाइन किया 3। ठीक, इस z के अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया i इज इक्वल टू 2। ठीक, उसके बाद फिर मैंने h और i को डिस्प्ले कराया। ठीक, फिर y फंक्शन जो है मैंने उसको क्लोज किया और उसके बाद फिर h और i को डिस्प्ले कराया, फिर y को कॉल करा। अब अगर मैं z को कॉल करता तो वहाँ पर दो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुए, पहला h नाम से जिसमें वैल्यू 1 गई और दूसरा i नाम से जिसमें वैल्यू 3 गई। ठीक, एक तीसरा ब्लॉक क्रिएट हुआ y फंक्शन के लिए जिसमें एक अनदर y क्रिएट हुआ, i क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू 2 है। अब जो फंक्शन y के अंदर i वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2 है उससे मैं बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि वो उसी के अंदर डिफाइन है, इसका जो स्कोप है उस y फंक्शन के अंदर तक ही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम किसी एक स्टोर पर जाते हो, किसी एक दुकान पर जाते हो, तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको मोबाइल खरीदनी है, तुम एक दुकान पर गए, तुमने एक स्पेसिफिक सेट माना कि मुझे यही चाहिए, तुम्हें OnePlus ही चाहिए और उस दुकान वाले के पास अगर OnePlus नहीं है तो वो तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, तो उस दुकान वाले का जो स्कोप है उसके अंदर रखे हुए सारे फोन्स तक है, वो बाहर से उठाकर तुम्हें OnePlus प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर कोई उससे बड़ा है जिसके पास वो पहले से OnePlus पड़ा हुआ है तो वो तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है। बात समझ में आई? सर हेलो। मेरा एक डाउट, हम लोगों ने हाँ, माय फंक्शन को 2 बार डिफाइन कर दिया था ऊपर शायद, फिर भी उसने एरर वाई क्यों नहीं शो किया? वाई फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया मैंने? नहीं सर, माय फंक्शन। यहाँ सर एक बार माय फंक्शन को हम लोगों ने मतलब खाली छोड़ा था और एक बार नीचे ए प्लस ए एंड बी के हिसाब से डिफाइन किया था। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर मैं इसको कैसे बताऊँ सर, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। सर एक मिनट, देखो यार जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि लेट वाले जो कीवर्ड होते हैं, देखो दो मोड होते हैं। पहली चीज तो जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिक्ट मोड होता है। अगर हम लोग अभी स्ट्रिक्ट मोड में वर्क कर रहे होते हैं तो फिर हम वेरिएबल को भी रीडिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। पर लाइक एज आई सेड कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो है मोर और लेस लूजली टाइप्ड है, तो फिर तुम वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर सकते हो। तो जो हमने माय फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, क्योंकि हमने इसको कोई भी टाइप नहीं दिया। जो फंक्शंस हैं, ये जो तुम फंक्शन बना रहे हो ये भी एक टाइप का वेरिएबल ही है। तो अगर तुमने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट क्या एज्यूम करता है कि ये var वाला वेरिएबल है, ठीक है, ना कि लेट वाला। तो जब तुम var वाले वेरिएबल्स को यूज करोगे तो तुम उनको रीडिफाइन लाइक फिर से रीडिक्लेयर कर सकते हो, बट सेम चीज तुम लेट वाले वेरिएबल के साथ में नहीं कर सकते। एंड अगर तुम जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड में यूज कर रहे हो तो फिर तुम किसी को भी किसी नहीं को कर भी सकते। रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मेन इशू मतलब मेन पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो तुमने फंक्शन बनाया है ना, ये तुम्हारा एक्चुअल में एक डेटा टाइप ही है और वैर टाइप का डेटा टाइप है। अगर तुम बाय डिफॉल्ट मतलब तुम अगर बताते नहीं हो जावास्क्रिप्ट को कि कौन सा टाइप का वेरिएबल है ये, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबली एक वैर टाइप का वेरिएबल बनाता है उसको। सर ना पैरामीटर्स पर भी तो डिफर करती समझ आ है रहा है क्या? वैल्यूज ना। सर हेलो, हाँ क्या बोला? पैरामीटर्स एक पर भी सेकंड तो देना वैल्यू मुझे। डिफर करती हैं। हाँ मेरे रूम पर एक मिनट। हाँ फिर से बोलना, क्या बोल रहा था? वो साफ सफाई वाली आंटी आई थी रूम पे। पैरामीटर्स पर वैल्यू तो अरे फंक्शन रीडिक्लेरेशन तो हो सकता है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन करके। वो एक अलग चीज़ है, बट अभी जो यहाँ पे मेन चीज़ है जिसे जैसे अलाउ किया हुआ है, उसका रीज़न यही है कि ये जो फंक्शंस है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग वाली चीज़ एक अलग होती है। अभी ये जो हम लोग सेम नाम से बार बार डिफाइन कर पा रहे हैं, उनका रीज़न यही है कि ये एक वेरिएबल में जाते हैं।
मतलब एक वेरिएबल की तरह ही कंसिडर किया जाता है इन्हें, और वैर वाले वेरिएबल की तरह कंसिडर किया जाता है, लेट की तरह नहीं। अगर तुम लेट को फिर से डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो फिर एक एरर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार लेट वाले वेरिएबल को बनाओ एंड फिर से रीडिक्लेयर करने की कोशिश करो तो वो एक एरर देता है, बट सेम चीज वैर के केस में नहीं होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग दूसरी चीज है, वो आगे बता देंगे इनको जब आगे एडवांस क्लास जरूरत पड़ेगा। सर हाँ, फंक्शन समझ में आया, स्कोप समझ में आई बात? हेलो, स्कोप समझ में आया? क्यों यहाँ पर 3 प्रिंट हो रहा है और क्यों यहाँ पर 2 प्रिंट हो रहा है? यस सर। पहले ये वाला लाइन ऑफ कमांड रन किया, उसके बाद मैंने y फंक्शन कॉल किया, तब उसके बाद y में गया और ये वाला लाइन ऑफ कमांड प्रिंट किया। इसके लिए i की वैल्यू 2 है और ये वाला जो i है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक। तो इसके पास i की वैल्यू 3 है, ठीक। अब देखते हैं ऑपरेटर्स कुछ हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर कंपैरिजन में ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, एंड इवन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। उनके बीच का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस या उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं। a इज इक्वल टू 8, सिंगल इक्वल टू ऑलवेज डिफाइन द असाइनमेंट ऑपरेटर। మరి విజయాన్ని అట్టుకోవడం ఏం లేదు. हेलो, నేను ఫ్రీ अनम्यूट कर लो यार। कोई अनम्यूट करो प्लीज, म्यूट करो अपने को। అంటే ఇక నేను అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్నాడు ఇక ఏదైనా श्रीकर म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ असाइनमेंट कर दूं। हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा था मैं। सिंगल इक्वल टू ऑलवेज डिस्प्लेज द असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हमारे जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स को असाइन हो जाती है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 8 लिखा, तो मैंने क्या किया कि 8 को a में असाइन कर दिया। मेरा एक मेमोरी ब्लॉक कहीं बना होगा जिसका नाम a होगा और उसके अंदर अब 8 वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक। दूसरा एक होता है इक्वल टू ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल दोनों इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं कहूँ इफ़ a इक्वल टू 8 और a इक्वल टू 8, अब यहाँ पर a को मैंने या a को ही दोनों वैल्यू दे दी, सॉरी, b को मैं 8 रखता हूँ। यहाँ पर a के अंदर मैंने एक नंबर पास किया जिसकी वैल्यू 8 है और b के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास किया जिसमें कैरेक्टर में वैल्यू 8 है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मैं इन्हें दो तरह से कंपेयर कर सकता, एक स्ट्रिक्टली और एक नॉन स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे वैल्यू के साथ साथ इनके डेटा टाइप्स भी कंपेयर होंगे। सेम डेटा टाइप्स होगा तभी इफ स्टेटमेंट वाली ब्लॉक रन करेगा या ट्रू होगी एक कंडीशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करूँ, अगर डबल इक्वल टू यूज़ करूँगा तो इनकी वैल्यूज़ सिर्फ कंपेयर होंगी, इनके डेटा टाइप्स कंपेयर नहीं होंगे। मतलब मैं एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ तो आउटपुट मेरा मैन आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि a की वैल्यू 8 थी, तो इसने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट ने खुद ब खुद इसके डेटा टाइप को कन्वर्ट किया नंबर में और वहाँ पर कंपैरिजन किया, ठीक है, और दोनों वैल्यूज 8 आ गए तो इसलिए हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर सेम लाइन ऑफ कमांड रन करूँ लेकिन ट्रिपल इक्वल टू इस्तेमाल करता हूँ, तब मेरा आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू केस में ये स्ट्रिक्टली कंपैरिजन होता है। सबसे पहले ये डेटा टाइप कंपेयर करेगा, अगर डेटा टाइप मैच करती है उसके बाद वैल्यूज कंपेयर करेगा। समझ में आया या नहीं? हेलो, यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है। इसके अलावा प्लस तो मैंने देख ही लिया, माइनस भी करके देख लेते हैं, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर।
सही है? किसी कोई दिक्कत या कुछ गलत आ रहा है? सही है सब? सर पावर यस के लिए कैसे सर, लिखेंगे सब सर सही ए की है। पावर यस बी? सर। पावर के लिए लिखता हूँ, लिख गया पावर के लिए। यस सर। और कुछ? फ्लोट वैल्यूज में डिवीजन परफॉर्म करें? 2 से क्यों, 3 से करते हैं। 4.33333। कंसोल में तुम बेसिक मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, इवन कंपैरिजन ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, कंसोल फॉल्स है ना? 3 तो 4 से बड़ा नहीं होता। ठीक, कैरेक्टर्स कंपेयर करें। ए बड़ा है कि बी? नंबर कंपेयर करते हैं। तो मुझे इसका आउटपुट बता सकता है? हेलो, दोनों केस में फॉल्स। इसमें भी फॉल्स। कोई बता सकता है? एक नंबर है, एक वेरी, ये एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। सर दोनों अलग डेटा टाइप से इसलिए। तो मैंने बताया ना कि जावास्क्रिप्ट कोड कन्वर्जन करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है। कोई भी? सर फिर से रिपीट करना क्वेश्चन एक बार। यहाँ पर मैंने 1 और बी को कंपेयर किया, तो ना 1 बी से बड़ा है, ना छोटा है, ना बराबर है। क्यों, कोई बताएगा? सर क्योंकि आपने बी को इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया है तो वो स्ट्रिंग बन गया है शायद। कोई और? स्ट्रिंग बना है, ठीक है। सर डेटा टाइप अलग है तो दोनों का। बी का आस्की कोड। और 1 ए इंटीजर है तो दोनों के डेटा टाइप अलग अलग हैं। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? वो कंपैरिजन करने के लिए कन्वर्जन्स करती है, कोवर्जन करती है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ जब ऊपर मैंने बताया डबल इक्वल टू ऑपरेटर कंपैरिजन, तो मैंने पहले बोला कि ए को बी से कन्वर्ट करने के लिए किसी एक को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया गया होगा, फिर कंपैरिजन हुआ होगा। ठीक, जबकि यहाँ पर पहले डेटा टाइप कंपेयर किया होगा, डेटा टाइप जब इक्वल हुई होंगी तब मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं डेटा टाइप कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वैल्यूज़ ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो पहले मैंने कन्वर्जन किया होगा, उसके बाद ना कंपेरिजन किया होगा। तो सेम केस यहाँ भी है। कोई भी नहीं? चलो मैं बता दूँ। एक्चुअली जब भी स्ट्रिंग का नंबर में कंपैरिजन होता है, तो जब हम कन्वर्जन करते हैं स्ट्रिंग को नंबर में, तो वह एक NaN नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है, जो कि ऑलवेज फॉल्स होती है। ठीक, तो इस केस में ना तो मेरा ये कभी वो वैल्यूज ट्रू हो नहीं सकती। ठीक, एक स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्जन नहीं होता है, वो हमेशा एक नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। बात समझ में आई?
यहाँ पर जब मैंने कंपैरिजन किया तो मेरा वेरिएबल जो था नंबर था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ होगा, उसके बाद कंपैरिजन होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कोएर्जन टाइप में एक नॉन नंबरिक स्ट्रिंग समझा। मतलब एक कैरेक्टर को मैं एक नंबर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता, वो नॉन डिफाइंड होता है। ओके सर। ये एक NaN वैल्यू है। अगर मैं इफ स्टेटमेंट में कभी भी सर NaN मतलब बी वेरिएबल नहीं है? बी स्ट्रिंग है यार, तो मैंने मतलब कहा ना। कोई भी, या फिर जो आपने पहले स्पेसिफाई किया था वो वाला तो नहीं है ना? ये एक नॉन नंबरिक स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई नंबर भी नहीं है। हाँ तो मतलब आप अगर बी की जगह डी भी लिखोगे तो तभी भी वही फॉल्स ही आएगा ना? हाँ, हाँ तो ओके। नहीं एक्चुअली आपने बी पहले स्पेसिफाई किया था इसीलिए। बी मैंने एक वेरिएबल स्पेसिफाई किया था, लेकिन यहाँ हाँ पर हाँ। मैं बी एक स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ना कौन NaN वैल्यूज होती हैं कुछ, ये भी सर एक बार NaN फिर से। हम जब भी हम किसी एक नॉन नंबरिक स्ट्रिंग को कोएर्जन करते हैं उसको नंबर के फॉर्म में, तो हमेशा एक नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है। एक स्ट्रिंग मैंने ली जिसमें कोई एक नंबर नहीं है, कोई एक कैरेक्टर है, ठीक, नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। उसको मैं अगर किसी एक नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो हमेशा एक नॉन डिफाइंड वैल्यू होगी, ठीक। और जब भी नॉन डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी तो वो हमेशा एक फॉल्स ही स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में NaN नॉन डिफाइंड वैल्यूज जो है वो कंपेयर किया तो मुझे यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही फॉल्स ही है। जीरो और नल कैरेक्टर के अलावा ये तीसरी ऐसी वैल्यू होती है जो कि बिना कंपैरिजन के भी फॉल्स देती है, ठीक है। यस सर। अभी तक सिर्फ मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात किया। मैंने तुम्हें बताया बूलियन क्या है, नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, फंक्शन से बताएं, लूप से बताएं, ठीक। अब अगर मैं कंपोजिट डेटा टाइप्स की बात करता हूँ तो उसमें दो डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। पहला है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, दूसरा है हमारे पास एरेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट्स पढ़ना चाहूँगा, ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। चलो, जावा स्क्रिप्ट की सबसे खास बात कि ये मुझे नहीं करता कि मैं एक स्पेसिफिक डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को ही एक जगह कंसिस्ट करूं, ठीक। ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर सकता हूँ कि डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक डिफाइन करा वेर मैन, या मैन क्यों करूँ, मैं पर्सन करता हूँ। अंदर मैंने लिखा पर्सन का फर्स्ट नेम होता है कुछ, ठीक। इसको मैंने वैल्यू दी, मैं अपने ही दे लेता हूँ आनंद, ठीक। साथ में एक लास्ट नेम है, ठीक। और मेरी कुछ एज होगी 20, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये पर्सन की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल पर्सन के नाम से, जिसके अंदर मैंने 3 डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर की हैं। अब ये वैल्यूज़ हमेशा की और पेयर के रूप में स्टोर हैं, की और पेयर के फॉर्म्स में स्टोर हैं। फर्स्ट नेम के साथ आनंद एसोसिएटेड है, लास्ट नेम के साथ द्विवेदी और एज के साथ 20, ठीक। किसी कोई दिक्कत। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हर एक की के लिए एक अलग वैल्यू है और उनकी डेटा टाइप से फिक्स नहीं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग यूज़ की, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ की, यहाँ पर नंबर यूज़ कर लिया। मतलब जैसा दूसरे लैंग्वेजेस में होता है कि मैं एक ही डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये मुझे एक डायनेमिक प्रोवाइड करता है, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कि मैं एक ही ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर पाऊँ, ठीक।
अब अगर मैं सर इसको आपने डिस्प्ले, डिफाइंड किया यानी कि आप सब वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं ना उसमें बाद हाँ में। मैं वैल्यूज म्यूटेट कर सकता हूँ। इनवैलिड सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर, क्या error आ गई इसको? ओके, ये भी गलत है। सॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज तो सही इस्तेमाल की है मैंने। सर एज के साइड में इक्वल टू लिखा है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? एज के नहीं, बाद में इक्वल टू हटा के कॉलन लगा। सॉरी, हाँ हाँ वहाँ पे एज के बाद में कॉलन लगा। कॉलम लगता है, हाँ सर थैंक यू यार। हाँ, अब अगर मैं इस पर्सन को डिस्प्ले करना चाहूँ, डॉट लॉग, यहाँ पर मुझे अपने वैल्यूज़ मिल गई। ठीक, अब देख रहे हो एज के साथ 20 है, फर्स्ट नेम के साथ आनंद और लास्ट नेम के साथ द्विवेदी, और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो हमें देख रही नहीं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, प्रोटोटाइप्स है कि किस तरह से कौन सी चीज़ें डिफाइंड है। ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने 3 डिफरेंट चीज़ें स्टोर की हैं। ठीक, दूसरा केस आता है कि मैं एक एरे डिफाइन कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं एरे के साथ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक वैर डिफाइन किया मैंने, एरे $8, और इसके लिए मैं कुछ भी डिफाइन कर, फ्रूट्स डिफाइन कर लेता हूँ। कोई एक एज डिफाइन कर दिया, कोई एक नंबर भी रख लिया मैंने इसके साथ में। ठीक, कंसोल किया मैंने log ARR। ठीक, यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज़ स्टोर की हैं जिसमें एप्पल, बनाना और 20 है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मैं दोनों की डेटा टाइप सेम रखूँ, अलग अलग रख सकता हूँ। अब क्या है कि इनकी इंडेक्सिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है। ऑब्जेक्ट्स और एरे में ये मेन डिफरेंस है कि एरे में इंडेक्सिंग खुद ब खुद होती है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इंडेक्सिंग करता है, 0 से शुरू होती है और एन तक जाती है। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट केस में हम अपनी इंडेक्सिंग जो है वो खुद दे सकते हैं, उसकी एक की डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एरे में हम एक की डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एक इंडेक्स डिफाइन नहीं कर सकते, वो पहले से डिफाइन करता है। अगर मुझे एक एरे में कोई पहला एलिमेंट देखना है तो जो भी है 0 पर एप्पल और 1 पर बनाना, 2 पर, ठीक। अब मुझे एरे की, मेरा मन है कि मैं एरे की लेंथ जान रहा हूँ। 3 एरे डॉट लेंथ, लेंथ एक फंक्शन है जो कि मुझे एबल करता है कि मैं किसी भी एरे की या किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को यूज़ कर सकूँ, डिफाइन कर सकूँ। अगर मैं एक लूप चलाना चाहूँ इसमें, var I इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एरे की लेंथ, और आई को इटरेट किया मैंने, साथ में मैं बस डिस्प्ले करना चाहता हूँ एरे के सारे एलिमेंट्स को। एरे के सारे एलिमेंट्स को, ठीक। तो मेरी लूप शुरू हुई आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के एरे की लेंथ जो कि 3 थी, यहाँ पर 3 वैल्यू, 0 पर एप्पल, 1 पर बनाना और 2 पर 20। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? एरे और ऑब्जेक्ट में अंतर पता चला या फिर से? हेलो यस सर। सर आपने एरे की लेंथ स्पेसिफाई नहीं की, एरे मतलब की ऐसा लेंथ स्टेटमेंट नहीं होता क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि जावास्क्रिप्ट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसमें तुम्हें हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। ठीक, अगर तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ा हो, अगर कोई C++ करता हो तो समझ जाओ ये वही है कि मुझे वेक्टर की साइज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सेम इस केस में भी, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ जाओ कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में एरे हो या ऑब्जेक्ट हो, उसकी लेंथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई और किसी को डाउट कुछ भी? नो सर। नो सर।
आई थिंक एरेज हो गए, सब्जेक्ट्स फंक्शन, सो और तो कुछ ऑब्जेक्ट भी हो गया, एरे हो गया, लूप्स हो गया। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। किसी कोई डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कुछ ना समझ में आया हो कहीं भी किसी पॉइंट पर? सर हम लोग कंसोल कहाँ कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉरी? हैं? यस सर। तुम कितनी भी बड़ी प्रोग्राम बना लो, कितनी बड़ी जावास्क्रिप्ट लिख लो, तुमको मेन एरर जावास्क्रिप्ट की कंसोल में ही दिखती है। मैंने कहा ना कि तुम्हें अगर जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देखना है तो तुम्हें दो तरीके हो सकते हैं देखने के लिए। सब पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास एक अलर्ट मेथड जो कि एक पॉपअप विंडो होता है। दूसरा ऑप्शन है कि console.log, कि कोई भी चीज़ तुम्हारे कंसोल में डिस्प्ले हो जाए। ठीक, तो अलर्ट मैसेज तुम्हारा पॉपअप होगा, उसके बाद फिर तुम्हें स्विच करना पड़ेगा उस प्रोग्राम पर, तो बार बार उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। लेकिन कंसोल के केस में सारी चीज़ें यहीं पर आ जाती हैं। कुछ और किसी को? सर हम लोग जावास्क्रिप्ट से सीपी कर सकते हैं क्या? जावास्क्रिप्ट से सीपी कर सकते हैं क्या? कन्वीनियंट तो नहीं है कि तुम जावास्क्रिप्ट से सीपी करो, क्योंकि पहली बात तो ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, साथ में तुम्हारी टाइम लिमिट भी शायद ही दे। मैंने कभी ट्राई तो नहीं करा, लेकिन कभी मैंने किसी को करते हुए भी नहीं तुम देखा। लोग आनंद वेट, तुम लोग कर सकते हो जेएस से सीपी के लिए रेकमेंड तो नहीं करते, बट तुम लोग डीएसए जावास्क्रिप्ट में ज़रूर कर सकते हो, बिकॉज जो कुछ कंपनीज हैं जैसे भारत पे है फॉर एग्जांपल, वो इंटरव्यू में तुमसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही डीएसए के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करवा के देखती हैं। सो तुम लोग जेएस में भी, मतलब तुम्हारा डीएसए स्ट्रांग होना चाहिए, तुम किसी भी लैंग्वेज में कर लोगे फिर। ओके सर।